بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کی کسی بستی میں ایک شخص جس کا نام حسن تھا، وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ حسن ایک عام سا مزدور تھا جو کانٹوں پر اس سفر پر قدم با قدم چل رہا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن ایک ہی جیسا تھا، تنگ جھونپڑی، تھکا دینے والی مزدوری اور بیوی کے تلخ الفاظ۔ حسن کی بیوی زینب خوبصورت تو تھی، مگر اس کے دل میں صبر نہ تھا۔ وہ اکثر حسن کو غربت کے طعنے دیتی اور کہتی، اور کتنے سال اسی طرح دھکے کھاؤ گے؟ کبھی اپنے بچوں کا سوچا ہے؟ کبھی میرا خیال کیا ہے؟ نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ ڈھنگ کا کھانا۔ حسن خاموشی سے یہ سب سنتا، کیونکہ اس کے پاس دینے کو جواب ہی نہیں تھا۔ حسن کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، وہ بھی 7 سال کا تھا، اور ایک بیٹی نور جو 5 سال کی تھی۔ یوسف سنجیدہ مزاج تھا، وہ اپنے والد کی خاموشی میں چھپے درد کو اتنی چھوٹی عمر میں سمجھنے لگا تھا۔ حسن بغداد کے مضافات میں واقع ایک پرانی کوئلے کی کان میں مزدوری کرتا تھا۔ ہر روز سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنی جھونپڑی سے نکلتا۔ کان کا راستہ خطرناک اور تھکا دینے والا تھا، مگر حسن کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ دن بھر کالے دھوئیں اور پتریلی دیواروں کے درمیان اپنی سانسیں لیتا رہتا۔ ایک دن کا ذکر ہے جب گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور حسن پسینے سے شرابور تھا۔ اس روز زینب نے حسب معمول طعنے دیے، مگر اس بار اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ اس جہنم میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حسن نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ کہیں رک گئے۔ زینب نے اگلی صبح اپنے کپڑے سمیٹے، بچوں کو بوسہ دیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ صرف ایک کاغذ چھوڑ گئی، مجھے کہیں بھی مت ڈھونڈنا، میں اب اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ جب حسن شام کو واپس آیا تو یوسف اور نور خاموش بیٹھے تھے۔ نور کی آنکھیں نم تھیں۔ حسن کے ہاتھ سے تھیلا گرا اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگلے چند دن اس نے انتہائی سخت گزارے۔ وہ خود اپنے بچوں کا خیال رکھتا، کھانا پینا بھی خود ہی پکاتا، اس کے علاوہ کام پر جانا اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی باتیں سننا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا لوگ کہتے، ارے یہ وہی حسن ہے جس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں وہ عورت کسی کے ساتھ چلی گئی، شاید کوئی امیر ہوگا، بیچارہ بچوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ مگر حسن نے سب سنا، سب برداشت کیا، صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر، جنہیں دیکھ کر وہ جی رہا تھا۔ کوئلے کی کان میں کام کرنا آسان نہیں تھا۔ پرانے دور کی یہ کان گہری، تاریک اور خطرناک تھی۔ ہر مزدور کو پتھر توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا کہ کوئی چھت نہ گر جائے، کوئی کسی ملبے تلے نہ آ جائے۔ مگر حسن کے لیے یہ جگہ صرف روزی نہیں، بلکہ زندگی کا آخری سہارا بن چکی تھی۔ ایک روز کان کے اندر جب حسن اپنے بیلچے سے زمین کھود رہا تھا تو ایک بوڑھا مزدور جلال اس کے پاس آیا۔ حسن، سنا ہے بیوی چھوڑ گئی تجھے؟ حسن نے سر ہلایا، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ جلال نے ایک پرانا کپڑا اس کی طرف بڑھایا، اس میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ یہ لے، یہ اپنے بچوں کے لیے لے جانا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ حسن نے کھجوریں لیں اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ نہ رونا چاہتا تھا، نہ شکایت کرنا، لیکن دل جیسے بھر آیا۔ اس نے جلال کا شکریہ ادا کیا۔ چند دن بعد کان کے ایک کونے میں کام کرتے وقت حسن نے زمین میں کچھ مختلف محسوس کیا۔ وہ جگہ معمول سے زیادہ سخت تھی، جیسے کوئی پتھر نہ ہو، بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے اس جگہ کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا اور کام ختم کر کے گھر چلایا۔ شام کو گھر آ کر وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ ان سے کہنے لگا، بیٹا تمہاری امی چلی گئی ہیں، پر کیا تمہیں اپنے بابا پر بھروسہ ہے؟ امی چلی گئی تو کیا ہوا، آپ تو ہیں نا ہمارے ساتھ، آپ تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ بیٹے کی یہ بات سن کر اس نے دونوں بچوں کو اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میں تم دونوں کے لیے پوری دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، پر تم دونوں کو نہیں۔
अगले दिन सुबह की अजान से पहले ही हसन बेदार हो चुका था। झोंपड़ी में अब जैनब की आवाज नहीं गूंजती थी, ना ही चूल्हे पर खाना पकने की खुशबू थी। सिर्फ खामोशी, बच्चों की सांसें और हसन की जिम्मेदारी। यूसुफ और नूर सो रहे थे। हसन ने उनके चेहरों को गौर से देखा। एक लम्हे को दिल चाहा कि बच्चों को गोद में लेकर सारी दुनिया से छुपा ले, लेकिन आखिर उसे मजदूरी करने जाना था और रोटी कमानी थी। वो नहायत एहतियात से दरवाजा खोलकर निकला ताकि बच्चों की नींद ना टूटे। गली में अभी भी अंधेरा था। वो तेजी से कान की जानिब बढ़ने लगा, गोया वो अपने दुखों को जमीन में दफन करने जा रहा हो। जैसे ही वो कान के अंदर पहुंचा, उसने पुरानी आदत के मुताबिक अपने औजार उठाए और उस कोने की तरफ बढ़ा जहां कल को उसे जमीन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, एक खामोश बुलावा, जैसे जमीन कुछ कह रही हो। उस दिन उसने सोचा कि वो उस जगह को दोबारा खोदेगा। उसने बेलचा हाथ में पकड़ा और उस जगह पर खुदाई करने लगा। एक बार फिर उसे वो जगह सख्त महसूस हुई, लेकिन ये एक जगह कोई आम जगह नहीं थी। ये कुछ और ही था, जैसे जमीन के अंदर कुछ कीमती चीज छुपी हो। पहले पहल तो हसन ने यही समझा कि शायद यहाँ कोई पुराना लोहा दफन है या फिर किसी जमाने की ईंटें, मगर जब उसने मजीद खुदाई की तो एक चमक सी आंखों के सामने लहराई। वो कोयले की कान जो अंधेरे में डूबी रहती थी, वो रोशनी से चमकने लगी। मिट्टी के दरमियान कुछ चमक रहा था। हसन ने जल्दी से उसे हाथों से साफ किया तो एक गोल, सख्त और बेहद शफाफ शय निकली, जैसे शीशे का कोई टुकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खुद से कहने लगा, हसन, ये मामूली चीज नहीं लगती। लेकिन वो चमकती हुई चीज अभी भी जमीन के अंदर ही थी और उसका कुछ हिस्सा जमीन से बाहर था। उसने अभी उसे मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकाला था। अभी वो वहां पर मजीद खुदाई करने ही लगा था कि अचानक उस बूढ़े चाचा जलाल की आवाज आई, अरे हसन, आराम से, वो इलाका खतरनाक है, छत कमजोर है। हसन ने जल्दी से मिट्टी वापस उस पर डाल दी और वहां से हट गया। वो समझ गया था कि वहां कुछ खास है, लेकिन वो मजबूरन किसी के सामने उसे वहां से निकाल नहीं सकता था। इसलिए उसने दोबारा उसे मिट्टी में दफन कर दिया और वहां से हट गया। फिर वो दूसरी जगह पर काम करने लगा, लेकिन उसका सारा ध्यान उसी तरफ रहा। कभी कभार दूसरे मजदूर उस जगह पर जाते, लेकिन छत कमजोर होने के डर की वजह से वहां से वापस आ जाते। किसी ने भी उस तरफ काम करने में दिलचस्पी ना ली। शाम को सब अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। हसन के जहन में वो चमकदार शय मुसलसल गर्दिश कर रही थी। क्या ये वाकई हीरा है या सिर्फ कोई कीमती पत्थर, या मेरी खुशफहमी है? घर पहुंचकर उसने बच्चों के लिए खाना तैयार किया और उनके साथ बैठकर खाने लगा। फिर थोड़ी देर उनके साथ बातें करके उसने उन्हें सुला दिया। जब वो दोनों सो गए तो उसने भी सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिल में एक ही सवाल था, अगर ये हीरा हुआ तो ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। उसकी आंखों के सामने कभी ज़ैनब का चेहरा आता जो उसे छोड़ चुकी थी, कभी वो बाजार के अमीर लोग याद आते जिन्होंने हमेशा उसे हकीर नजरों से देखा, और कभी उसे अपना आप दिखाई देता, मजबूरियों का मारा हुआ हसन। अगले दिन वो पहले से ज्यादा पुरजोश होकर कान में पहुंचा। वो सीधा उसी मुकाम पर गया और इस बार जलाल के आने से पहले ही ज्यादा गहराई में खोदने लगा। उसके हाथों में जोश था और दिल में उम्मीद। जब उसने चमक से पत्थर को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाला तो उसकी सांसें रुक गईं। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये वाकई एक हीरा था, बड़ा शफाफ और बेहद कीमती। उसने हीरा अपने हाथों में उठाया, जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो उसकी चमक में खो गया। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये उसकी किस्मत का दरवाजा था जो बरसों बाद खुला था। लेकिन साथ ही दिल में एक अनजानी घबराहट भी थी, जैसे कोई बड़ी आजमाइश उसके सामने खड़ी हो। उसने जल्दी से हीरे को पुराने कपड़े के थैले में छुपाया और कान से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। कान वैसी की वैसी खामोश और अंधेरी थी जैसे हर रोज, मगर आज वो उसके लिए खजाने की सरजमीन बन चुकी थी। रास्ता भर उसने किसी से नजर ना मिलाई, सर झुकाए तेज कदमों से अपने झोंपड़ी की तरफ बढ़ता रहा।
घर पहुंचते ही दरवाजा अंदर से बंद किया, बच्चों को गले लगाया और कहने लगा, आज बाबा के पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अभी नहीं बता सकता। बस दुआ करते रहो। अब हमारी जिंदगी की कहानी भी खुशी से भरने वाली है। रात को जब बच्चे सो गए तो उसने चिराग की मध्यम रोशनी में थैले से कपड़ा निकाला। हीरा अब भी वैसे ही चमक रहा था। उसकी सतह इतनी साफ थी कि हसन अपनी धुंधली सूरत उसमें देख सकता था। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि आखिर अब वो इस हीरे के साथ क्या करेगा। क्या वो इसे बाजार में जाकर किसी सुनार के पास बेच दे या फिर किसी अमीर ताजर को बेच दे। लेकिन फिर उसके दिल में खदशा पैदा होने लगा, वो सुनार कहीं उसके साथ बेईमानी ना कर जाए, या फिर अगर किसी को पता चल गया तो जान खतरे में पड़ जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक कान में कोयला तोड़ने वाले के हाथ में इतना कीमती हीरा कैसे लग गया। हसन पूरी रात सोचता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वो अगले दिन पुराने बाजार के एक बुजुर्ग सुनार के पास जाएगा, जो ईमानदार और नेक था, जिसका नाम शेख फहीम था। अगली सुबह हसन ने बच्चों को हमसाये की बूढ़ी औरत के पास छोड़ा, जो अक्सर नूर और यूसुफ का ख्याल रखती थी। खुद हीरा थैले में छुपाकर शहर के मशहूर जेवरात बाजार पहुंचा। बाजार के चमकते दमकते माहौल ने हसन को उसकी गुर्बत का शिद्दत से एहसास दिलाया, मगर उसने नजरें नीची रखी और सीधा शेख फहीम की दुकान पर पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अंदर बैठा था। जब उसने हसन को देखा तो बुलंद आवाज से कहा, आ जाओ बेटा, कैसा हाल है। हसन अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया और थोड़ा झिझक कर बोला, शेख साहब, मैं आपके पास एक खास मामले में आया हूँ। फिर हसन ने आहिस्तगी से कपड़ा खोला और हीरा मेज पर रख दिया। शेख फहीम की आंखें एक लम्हे को फटी की फटी रह गई। चंद लम्हों के बाद वो बोले, सुभान अल्लाह, ये महज पत्थर नहीं है, ये बगदाद के कदीम शाही खजाने जैसा लगता है। बेटा, ये कहाँ से लाए हो? हसन ने सच सच सारी बात बयान कर दी। उसने शेख को साफ साफ बताया कि उसे ये कोयले की कान से मिला है, जहां वो पिछले 3 दिन से खुदाई कर रहा था। शेख फहीम उससे कहने लगा, बेटा, मैं जानता हूँ कि अक्सर ऐसी कोयले की कानों में काम करते वक्त इंसान को हीरा मिल जाता है, लेकिन एक बात तुम भी जान लो कि जब इंसान के हाथ इतना बड़ा खजाना लग जाता है तो वो उसके लिए मुसीबत भी बन जाता है। फिर शेख उससे कहने लगा, इसे बाजार में ले जाना खतरनाक होगा। यहाँ हर दूसरा आदमी रिश्वतखोर और तीसरा साजिशी है। तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जो ना सिर्फ हीरों का इल्म रखता हो बल्कि दयानतदार भी हो। हसन पूछने लगा, वो शख्स हमें कहाँ मिलेगा? शेख ने जवाब दिया, बगदाद के पुराने काजी अब्दुल कहार। अब वो काजी नहीं रहे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम उनके पास जाओ और मेरा हवाला देना, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अगली सुबह हसन काजी अब्दुल कहार के मकान पर पहुंचा, जो शहर के शुमाली इलाके में वाक़या था। हसन ने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी बाहर आया और कहने लगा, ऐ नौजवान, तुम्हें किससे मिलना है? हसन कहने लगा, मुझे काजी अब्दुल कहार से मिलना है। जिस पर वो बूढ़ा कहने लगा, मैं ही काजी अब्दुल कहार हूँ, बताओ कैसे आना हुआ। हसन ने शेख फहीम का हवाला दिया और कहा कि उसने उसे आपके पास भेजा है। काजी उसे अपने घर में मेहमान खाने में ले गया। फिर उसने हीरा काजी के सामने रखा, जिसे देखकर काजी भी हैरान रह गया। काजी ने ऐसा हीरा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। काजी हसन से कहने लगा, अगर तुम इसे किसी ताजर के पास लेकर जाओगे तो हो सकता है उसके दिल में बेईमानी आ जाए। हमें इसे नीलाम करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इसकी कीमत लगाएगा तुम इसे उसी के हाथ बेच देना। हसन ने काजी की बात मान ली और हीरा लेकर उसके घर से निकल गया। लेकिन जब वो उसके घर से निकल रहा था तो उसे वहां से निकलते हुए एक आदमी ने देख लिया। उसने हसन को गौर से देखा। हसन एक कपड़े के थैले को जिस तरह से छुपा रहा था, उस आदमी को शक हो गया। वो फौरन अपने मालिक के पास गया। वो अपने मालिक से कहने लगा, मालिक, अभी अभी एक आदमी काजी के घर से निकला है और जिस तरह से वो अपने थैले को छुपा रहा था, लगता है उसके पास कोई बहुत ही कीमती चीज है। मैंने कभी किसी को इस तरह अपना थैला छुपाते हुए नहीं देखा।
मालिक, जिसका नाम जाबिर था, वो बहुत बड़ा धोखेबाज और मक्कार इंसान था। उसने फौरन अपने आदमी को हसन का पीछा करने के लिए भेजा। वो आदमी फौरन हसन के पीछे गया और उसकी झोंपड़ी तक पीछा किया और फिर वापस आ गया। उसने आके जाबिर को बताया कि हसन कहाँ रहता है। उसी रात उसने मंसूबा बनाया कि वो अपने आदमियों के साथ रात के पिछले पहर हसन के घर जाएगा और उससे वो कीमती चीज़ ज़रूर हासिल कर लेगा, चाहे उसके लिए उसे हसन की जान क्यों ना लेनी पड़े। दूसरी तरफ काजी बेचैन था। वो काजी बहुत अच्छा इंसान था और उसके दिल में शुबा पैदा हुआ कि जिस कदर महंगा हीरा हसन के पास है, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। इसलिए वो फौरन शेख फ़हीम की दुकान पर गया और उससे कहने लगा, मुझे हसन के घर ले चलो, हमें उसे किसी महफूज जगह पर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई हमला कर दे। शेख फ़हीम काजी से कहने लगा, हाँ काजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हसन के घर पहुंचकर काजी उससे कहने लगा, बेटा तुम अपनी ज़रूरी चीज़ें और वो थैला अपने साथ लो और हमारे साथ चलो। हसन ने काजी से वजह पूछी, लेकिन काजी कहने लगा, बेटा तुम बस हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वजह बाद में बताएंगे। हसन ने अपना ज़रूरी सामान और वो थैला लिया और शेख फ़हीम के घर चला गया। रात का वक्त हुआ। जाबिर अपने गुंडों के साथ हसन के घर गया। वो दीवारें फलांग कर उसके घर में दाखिल हुए। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन घर में ना कोई था और ना ही उन्हें वो हीरा मिलना था। ये देखकर वो कहने लगा, वो काजी बहुत होशियार निकला, उसी ने उसकी मदद की, बहुत कीमती चीज़ हमारे हाथों से निकल गई। अगले दिन काजी शेख फ़हीम और हसन को लेकर बाजार के एक बड़े हुजरे में दाखिल हुए, जहां पर कीमती अशिया की नीलामी होती थी। काजी ने जाकर मेज पर एक बड़ा हीरा रख दिया। वहां पर बहुत सारे अमीर खरीदार आए हुए थे। काजी ने नीलामी का ऐलान किया। पहली बोली 50,000 दिनार की लगी, दूसरी 60,000 की। बोलियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गईं और फिर एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी उठा और कहने लगा, मैं इसका 1,00,000 दिनार दूंगा। हुजरे में खामोशी छा गई। काजी साहब कहने लगे, ठीक है, हमें यह नीलामी मंजूर है। उस अमीर आदमी ने हसन के हाथ में 1,00,000 दिनार की थैली थमाई और हीरे को एक थैले में डालकर अपने काफिले के साथ वहां से निकल गया। हसन बहुत खुश हुआ। उसने काजी और शेख फ़हीम का शुक्रिया अदा किया। वो अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगा, या अल्लाह, तूने मुझे कुछ ना होने से सब कुछ अता कर दिया, मुझे रुसवाई से निकाल कर इज्जत दी और मुझे साबित कदम रखा। या अल्लाह, तू मुझे हमेशा साबित कदम रखना, ताकि ये दौलत मेरे दिल में फ़ख्र ना बने और मैं हमेशा तेरे बंदों की खिदमत का वसीला रहूं। उसने सबसे पहला काम ये किया कि जिस झोंपड़ी में वो रहता था, उसने वहां पर अपने लिए एक घर तमीर किया। उसकी बीवी को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो भी हसन के घर आ गई और घर आकर हसन के कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगी, हसन मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी के साथ नहीं गई थी, बल्कि गुर्बत की वजह से अपने माँ बाप के घर चली गई थी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। हसन ने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया और उसे अपने घर में रख लिया। सारे मोहल्ले वाले हैरत में थे। अरे ये तो वही हसन है जो कान में मजदूरी करता था, वही जो रोटी के लिए तरसता था। लेकिन हसन ने ना तो किसी से फ़ख्र से बात की और ना ही उसमें गुरूर आया। अब हसन ने अपनी तवज्जो सिर्फ उस तरफ दी जहां उसका असल मुकाम था। वो रोज़ बाजार के उस कोने में जाता जहां फ़कीर जोलियां लिए बैठे होते। वो किसी के हाथ पर चुपके से एक शर्फी रख देता, किसी को बगैर बताए खाना भिजवा देता। उसने बहुत से गरीबों की मदद की, बहुत से यतीम बच्चों की कफालत की, लेकिन उसने सारी नेकियां छुप कर की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल दौलत मालो ज़र नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र, दयानत और खिदमत खलक का जज्बा है। इंसान का असल इम्तहान ना सिर्फ गुर्बत में होता है, बल्कि अमीरी में भी होता है। जिसे दौलत मिलने के बाद भी गुरूर ना आए, वही असल में कामयाब है। जो दौलत सिर्फ अपने लिए रखे, वो फ़कीर है, और जो अपनी दौलत दूसरों के लिए बांट दे, वही अल्लाह का महबूब बंदा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।